Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, if you have done with your IBPS PO Prim examination on 3rd, so now your focus is totally on main examination. And 5 examinations are lined up. Although dates are not available, but these will happen in the month of October and November. And what are these examinations? One is RBI Assistant Main. Another is SBI Junior Associate Main. Third is IBPS RRB Officer Main. Fourth is IBPS Office Assistant Main. And next is IBPS PO Main. So these are 5 examinations that is lined up. Some people ask, sir, what is the date of SBI Junior Associate Main exam? What is the date of RRB Officer Main exam? These dates are not announced. But yes, people are discussing about some dates. Whether these dates are confirmed or unconfirmed, I am not aware. So I am not speculating that that is a date. But still, since these exams are to happen, we will prepare for all these examinations in a systematic manner. And when we have to appear for multiple exams, the best approach is we should tackle one exam on one day. So if we can follow this strategy or planning, we can cover all the exams. So today we will dedicate to SBI Junior Associate or RBI Assistant if your prim is cleared. For that, your strategy should be attempt one mock test from the link that is available in description and comment column. And if you have not taken or subscribed this mock test, subscribe it today. I am very strongly recommending this mock test because this is of good quality. Even yesterday, some of our subscriber commented, sir, few questions came in the examination of similar nature. So if you use a material that is of good quality, it always helps you. So don't hesitate to subscribe. Even if you are having other mock tests, you can subscribe this. This is going to help you. Now, after attempting this mock test, see the solution, analyze, and find out your weak areas. This is the time when you will only work on your weak areas. Make your timetable, spend 1 hour on English, half an hour rest, 1 hour on quant, half an hour rest, 1 hour on reasoning, half an hour rest. Then comes the current affairs. Current affairs plays very, very vital role in our selection. And our source should be good. Some people say, sir, current affair is available here and there and this. Because when we go for so many sources of current affair, we are wasting our time. You should value your time. We should not overplay any area. Some people, they spend 4 hours, 5 hours, 6 hours a day on current affair. That is also wrong approach. You should always distribute equal time to each topic so that you get few marks from everywhere. I have seen people, they are very good in quant and reasoning, but due to general awareness, they lose the mains. And that's why they say every time I clear the prim, I am not able to clear the main because they are weak in current affairs. And why they are weak in current affairs? They are watching videos, they are reading current affair from any source that is coming their way. It is wrong approach. Have a good source, believe in that source and prepare. And that's why I have identified a good source for you. The link is available in description column. Subscribe this. Here you will get daily, weekly and monthly PDFs. And from monthly PDFs you should prepare. And minimum 6 month current affair must be prepared. Then give rest of half an hour. In all banking exams, many questions come from banking, finance and economics. And it is very difficult to get good material on that. And that's why I have created 190 videos for you. So link is available in description column. All videos are free of cost. Watch 10 videos today. 3 to 4 minutes is the average duration of video. So in 1 hour, you will be able to cover.
Then latest news on banking, finance and economics also gets lot many question in exam. So there are playlist for July news, August news and September news. Watch 5 videos from this playlist. This should be your system for preparation. Don't bother what will be date of SBI Junior Associate and when result will come. These are going to come. We should concentrate on our work, that is study. Because unless some official communication comes, it is very difficult to comment on this. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब आप ये देखेंगे कि आपका SBI प्रोबेशनरी IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रीम खत्म हो गया. अब आपके पास क्या बचा है? अगले 2 महीने में सिर्फ मेंस के एग्जाम. अब ये मल्टीपल एग्जाम है, एक के बाद एक एग्जाम है. मान लीजिए RBI असिस्टेंट का मेन एग्जाम है, SBI जूनियर एसोसिएट का मेन एग्जाम है, इसके बाद IBPS RRB ऑफिसर का मेन एग्जाम है, IBPS ऑफिस असिस्टेंट मेन का मेन एग्जाम है, IBPS PO का मेन एग्जाम है. तो अब कंफ्यूजन ये होता है कैसे तैयारी करें, इतने सारे एग्जाम हैं. तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि एक एग्जाम पे हम एक दिन कंसंट्रेट करें. अब जैसे कल हमने IBPS PO मेन पे कंसंट्रेट किया था, आज हम SBI जूनियर एसोसिएट मेन पे कंसंट्रेट करेंगे या RBI असिस्टेंट मेन पे कंसंट्रेट करेंगे. अब कई लोग पूछते हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी डेट क्या है. काफ़ी जगह चर्चा चल रही है, अलग अलग लोग डेटें बता रहे हैं, बट कोई कंफर्म नहीं है. तो इसलिए जब तक वो डेट कंफर्म नहीं होगी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे. हम ये मान के चलेंगे ये एग्ज़ाम होगा, तो हमें तो तैयारी करनी है. तो आज आप SBI जूनियर एसोसिएट मेन की तैयारी करिए या RBI असिस्टेंट मेन की तैयारी करिए. इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए. आप लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम. बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया. कोई भी मॉक टेस्ट अभी आपके पास हो, इस मॉक टेस्ट को आप जरूर ले लें, ये आपको फ़ायदा करेगा. कल भी आप कमेंट पढ़िए जो चैनल पे आए हैं, काफ़ी लोगों ने कहा कि सर कुछ क्वेश्चन इसी में से मतलब सिमिलर पैटर्न के बिल्कुल आ गए और हमें बहुत फ़ायदा हुआ है. तो आप इसका फ़ायदा उठाइए. अगर आपको कोई सलाह दी जा रही है उसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा. आप देखिए चैनल पे हज़ारों लोगों को नौकरी लग चुकी है जिन्होंने सलाह मानी है. तो अगर आप भी सलाह मानते हैं आपको फ़ायदा ही होगा. तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया है, वहाँ से लिंक को यूज़ करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. अब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, इसके बाद इसका सोल्यूशन देख लीजिए, एनालिसिस देख लीजिए. आपको पता लग गया ये मेरा वीक एरिया. वीक एरिया का मतलब होता है जिस तरह के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं या जिस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं. अब आप टाइम टेबल बना लीजिए. 1 घंटा इंग्लिश को दीजिए, आधे घंटे का रेस्ट. 1 घंटा क्वांट को, आधे घंटे का रेस्ट. 1 घंटा रीजनिंग को, आधे घंटे का रेस्ट. अब देखेंगे हर एग्ज़ाम की ऑलमोस्ट सिमिलर तैयारी है. तो उससे क्या हो रहा है कि हम सब एग्ज़ाम साथ साथ तैयार करते चले जा रहे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट बदल रहे हैं डेली. तो उससे क्या हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि हर एग्ज़ाम का कर रहे हैं आप. अब 1 घंटा हमें करंट अफेयर्स को देना है. करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. अब काफ़ी लोग जो भी उनको सामने मटेरियल आता है उसको पढ़ने लगते हैं. कई लोग 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रोज के भी लगा दें. ये भी गलत अप्रोच है. अगर आप किसी भी विषय पे अधिक टाइम दे रहे हैं ये भी आपकी गलत अप्रोच है, क्योंकि इससे क्या होता है दूसरा कोई भी टॉपिक आपका वीक हो जाएगा. तो आपको हर टॉपिक के लिए एक टाइम निश्चित करना है कि इससे ज़्यादा टाइम मैं इस चीज़ को नहीं दूंगा. उससे क्या होगा कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर फील्ड में आपके 1-2 नंबर कम भी आ गए तो दूसरा सब्जेक्ट वो आपको एडिशनल नंबर दिला के एग्रीगेट आपका बढ़ा देगा. पर यदि आप एक ही चीज़ के ऊपर लगे रहे तो आप नुकसान में रह सकते हैं. तो अच्छा सोर्स करंट अफेयर का होना जरूरी है. ये नहीं है कि कोई भी सोर्स आ गया पढ़ना शुरू कर दिया या वीडियो देखनी शुरू कर दी. उससे आपका टाइम खराब होता है. देखने में लगता है वो फ्री है, पर जो आपका टाइम खराब होता है वो बहुत वैल्यूएबल है. तो एक अच्छा सोर्स आपको पता होना चाहिए, चाहे वो हमने थोड़े बहुत पैसे खर्च के ही क्यों ना लिया हो, मगर जो उससे वैल्यू निकल के आएगी. मान लो कोई चीज़ हमने 350 रुपये साल में ले ली है, 325 रुपये साल में ले ली, तो 1 महीने की क्या कीमत है? 30 रुपये, मतलब 1 रुपये रोज. और वैसे भी अगर हम 1 कप चाय भी पी लेते हैं 30 रुपये खर्च हो जाते हैं.
पर जब हमें मटेरियल खरीदने हम सोचने लगते हैं। ऐसा मत सोचिए, ये आपको मदद करने वाली चीज़ है। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया है, बहुत ही बेहतरीन सोर्स है करंट अफेयर्स का, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अंदर आपको डेली, वीकली और मंथली पीडीएफ मिलेंगे। मंथली पीडीएफ से आप पढ़ना शुरू करिए, ये आपको बहुत ही कारगर उपाय साबित होगा। मल्टीपल सोर्स से मत करिए तैयारी, बहुत टाइम वेस्ट होता है। सेम चीज़ें आप बार बार कई बार पढ़ते चले जाते हैं, सेम चीज़ें बार बार सुनते चले जाते हैं। जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम की बहुत वैल्यू है। कई लोग थोड़े से पैसों के बारे में सोचने लगते हैं, वो ये नहीं सोच रहे जो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो कितना वैल्यूएबल है, वो वापस नहीं आएगा। अगर नौकरी हमें मिल जाएगी 1 साल पहले तो हमारे घर में 4-5 लाख रुपए साल के आएंगे। बचा क्या रहे हैं हम? 100, 200, 300 रुपये। और लूज क्या कर रहे हैं? एक नौकरी, जिस नौकरी से 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना आना है। तो ये बहुत समझने की बात होती है। इसके बाद आप आधे घंटे का आराम करिए और बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए मैंने आपको लिए 190 वीडियोस बनाई हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस हैं, सिस्टमेटिक वीडियोस हैं। 10 वीडियो रोज देखिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर लेटेस्ट चीज़ें आप पहले बता दीजिए, तो अभी मैंने उसकी सीक्वेंस ऐसे कर दी है, जो लेटेस्ट वीडियोस बनाई हैं वो सबसे ऊपर कर दी है। तो सीक्वेंस मैंने चेंज कर दी है, तो लेटेस्ट वीडियोस ऊपर हैं, वहाँ से अब वापस चलते चले जाइए और 10 वीडियो रोज की देख लीजिए। फिर आधे घंटे का रेस्ट कर लीजिए। अब जो न्यूज़ होती है बैंकिंग के एरिया से, इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी मैंने 3 प्लेलिस्ट आपको दे दी है, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की। 5 वीडियोस यहाँ से देख लीजिए। तो एक एग्ज़ाम को हम एक दिन फोकस करेंगे, फिर दूसरे एग्ज़ाम को दूसरे दिन, इस तरीके से चलेंगे। तो आज का हमारा फोकस क्या है? SBI जूनियर एसोसिएट एंड RBI असिस्टेंट मेन एग्जामिनेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।